1.4 question number 3. They have said P and Q are true. R and S are false. So P and Q and R. We have to find the truth value of this. So we need P, Q, R. This is true. This is false. I'll find out first P, Q and R. Conjunction है. Conjunction का truth value क्या है? Conjunction is true if both are true. Otherwise it is false. So both are not true. So it is false. Q true, R is false. So it is false. Then P and Q or R, Q and R. So now P and Q, sorry, Q and R, इसका truth value F है. Bracket Q की हम लोग पहले solve करेंगे. Now P and Q and R. So T and F का truth value क्या आएगा? T and F. तो ये भी आएगा F. आप एक तो इसको लिख के ऐसे कर सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे P and Q and R, you can simply write it as T and F. T and F, and this will be F. See, in conjunction, ये true होगा अगर Q भी true है और R भी true है. Otherwise it will be false. तो ये T and F है तो वो F ही होगा. T and F है तो वो F ही होगा. So you can solve it by this method or you can solve it by this method. Any one method you can solve. Next. P implies Q or R and S. P implies Q or R and S. तो हम लोग निकालेंगे P, Q, R, S. This is true, true. False, false. R and S पहले निकाल लेंगे. R and S. It is conjunction. Conjunction is true only if both are true. So here the conjunction is false. Then P implies Q निकाल लेंगे हम लोग. P implies Q bracket. ये जो ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करना है. P implies Q कब होता है? इम्प्लीकेशन का रूल ये है कि अगर P T है तो Q भी T होना चाहिए. देन ओनली इम्प्लीकेशन इज ट्रू. तो ये ट्रू है. T T, this is T. Now P implies Q or R and S. So this is disjunction. अब ये disjunction कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? P implies Q is T, R and S is F. डिसजंक्शन में दोनों में से कोई एक भी T होगा तो पूरा डिसजंक्शन T होता है. So the truth value is T. Or you can say it like this also. T implies T or false and false. T implies T is T or this is false. T or false, your truth value is T. You can solve it by this method or you can solve it by this method. दोनों भी सही है. यहाँ पे हम लोग ये ट्रुथ टेबल की तरह नहीं निकालते हैं क्योंकि एक एक ही वैल्यू देखनी है. Then next. Next is quite big. See. Negation P or S and negation Q and R.
How will we solve this? We'll first write down. अगर टेबल की तरह करना है तो P Q R S, ओरिजिनल उनके वैल्यूज है T T F F. Then we will solve one by one. I want negation P or S. Just a minute. Continue. तो ये ओरिजिनल क्या है P Q R S, उनकी ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों ने लिख ली. नाउ निगेशन P और S. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निगेशन P आएगा F, निगेशन P और S निकालेंगे. फिर निगेशन P और S, तो निगेशन P और S F और F ही होता है. ये एक ब्रैकेट हो गया. नाउ विल सॉल्व दिस. For this bracket I will need negation Q. Negation Q is F. Now negation Q and R. तो negation Q and R. And है तो दोनों T होने चाहिए तो ही T होगा. लेकिन यहाँ पे negation Q F है, R भी F है, तो ये भी F ही होगा. अब उन्होंने क्या बोला है, negation P और S and negation Q and R. तो this and this का कंजंक्शन निकालना है. तो इसका और इसका कंजंक्शन, तो इन दोनों का कंजंक्शन क्या होगा, F. क्योंकि F and F is only F, क्योंकि कंजंक्शन में सिर्फ T ही T होता है. अब इस पूरे इसका निगेशन है, पूरे इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P and S और निगेशन Q and R. तो पूरे इसका निगेशन आएगा T. We can solve it in a different manner also. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेशन P का निगेशन F है और S है F, एंड निगेशन Q भी F हो जाएगा and F. So negation F और F is F and F is F. This is also F and negation of F is T. You can do it in this way or you can do it in this way. Why I'm teaching you this way? Because further we have to do the truth table. उसके लिए इस तरह से भी करना सीखना चाहिए आपको. So now the next truth table is here. P implies Q. So P is T, Q is T. P implies Q, तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. P implies Q will be T, क्योंकि इम्प्लीकेशन में T is T. Then निगेशन P और Q का निगेशन निकालना, नेक्स्ट ब्रैकेट. तो P और Q निकालेंगे. T और T is T. ट्रू और ट्रू is ट्रू. इसका निगेशन ये हो गया फॉल्स. अब हमको निकालना है इम्प्लीकेशन, ये डबल इम्प्लाइज दिस. तो P implies Q, डबल इम्प्लाइज निगेशन P और Q, तो वो हो गया false, क्योंकि ट्रू डबल इम्प्लाइज दिस विल बी F. Now if I solve it by different method, P implies Q will be T implies T, double implies negation T or T. T implies T is T, double implication this is T. T double implies false, your answer is false. क्योंकि यहाँ पे ना एक एक ही वैल्यू है P और Q की, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम होता है. लेकिन जब वहां पे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, सीरीज होती है, तो आपको उसे टेबल की तरह ही लिखना पड़ता है. Now let us do the next one. Yes, ma'am.
Now, for this, I will not draw the table. We will see if we can do simply like that. Truth table कब निकाला जाता है? जब P, Q, R, S ऐसे अलग अलग जो स्टेटमेंट्स दिए, उनके अलग अलग वैल्यूज भी दिए उन्होंने, ट्रुथ वैल्यू। तो P के 4 वैल्यूज है या 5 वैल्यूज है या 6 वैल्यूज है, R के है, तब हमको ट्रुथ टेबल निकालना पड़ता है। लेकिन इस सब में उन्होंने आपको बस P, Q, R, S की एक एक वैल्यू दी है। You can do it directly also. So I'll put the direct values here. T और S. तो S की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, implies R की ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, और निगेशन ट्रू implies ट्रू, और S है F। तो ट्रू और फॉल्स की ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? ट्रू implies F, और ट्रू implies ट्रू की ट्रुथ वैल्यू क्या है? T और F। T implies F की ट्रुथ वैल्यू आएगी F, और निगेशन T क्या आता है? F। F और F is true. See, F और F is F. Negation of F is true. F और T, T। देखो यहाँ पे डिसजंक्शन जहाँ पे होता है तो दोनों में से एक T होना चाहिए, तो ही वो T होता है, अदरवाइज इट इज फॉल्स। इन इम्प्लीकेशन T implies F is always F। तो ये सब टेक्निक हम लोगों को यूज करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक एक ही वैल्यू है ट्रुथ वैल्यू में, लेकिन जब आपको अलग अलग वैल्यूज की कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग ये नहीं कर सकते, हमको टेबल निकालना पड़ता है। Sunday is holiday is P and Q is Ram does not study on holiday, और इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू T है। फर्स्ट संडे इज, अभी हमको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है फॉर द गिवन स्टेटमेंट। संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। स्टेटमेंट था संडे इज हॉलीडे, तो संडे इज नॉट अ हॉलीडे क्या हो गया? निगेशन P, नॉट यूज करने के बाद। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में बोला है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये क्या हो गया? निगेशन Q, राम इज स्टडीइंग ऑन हॉलीडे। उल्टा हो गया ना। Now they have said Sunday is either not a holiday or Ram does studies on holiday. So this is negation P और negation Q, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू T है, तो negation T क्या हो गया? फॉल्स, और negation Q क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या हो गया? फॉल्स। Now let us go with the next one. If Sunday is not holiday, then Ram studies on holiday. तो P क्या है? P is Sunday is holiday. Q is Ram does not study on holiday, और दोनों की ट्रुथ वैल्यू T है। फिर सेकंड उन्होंने क्या बोला? इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, तो वो तो हो गया निगेशन P। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन संडे। इफ देन है, राम स्टडीज ऑन संडे हो गया निगेशन Q। इफ देन है तो ये हो गया इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन कैसे होगा? P का निगेशन P क्या हो गया? F implies F, F implies F is F। सॉरी, F implies F is T। इम्प्लीकेशन में इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? टी टी T है, TF F है, FT T है, और FF भी T है, तो ये T हो गया इन इम्प्लीकेशन।
ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि इफ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे, इफ इट इज नॉट अ हॉलीडे देन इट इज नेगेशन P. Then Ram studies on holiday. Ram does not study on holiday is a Q. So Ram studies on holiday is negation Q. If then है तो this implies this. So F implies if, it is T. And last, Sunday is a holiday. Ram studies on Sunday. P is Sunday is holiday. Sunday is a holiday. ये P है ओरिजिनल. ओरिजिनल Q क्या है? Ram does not study on holiday. अब उनका स्टेटमेंट क्या है? Sunday is a holiday and Ram studies on holiday. Sunday is a holiday and Ram does not study. ओरिजिनल क्यों है? Studies on holiday तो negation क्यों हो जाएगा? ये है T, ये है T, तो ये हो जाएगा T and negation T. So T and F. T and F is F. This is the symbolic form. And this is how we can find out the truth value. तो आज तक हम लोगों ने सिंबॉलिक स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म निकाले हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म से स्टेटमेंट निकालो. तो स्टेटमेंट इज he swims. Q is water is warm. अब हम लोग इन स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म से सेंटेंस बनाएंगे. P double implies negation Q. It means P is as it is. So he swims. Double implication, if and only if water is not warm. Then the second one is negation, P or Q. P or Q मतलब क्या? He swims or water is warm. So I will write he swims or water is warm. इसका negation क्या हो गया? It is not true that he swims or water is warm. क्योंकि इसका negation करना था ना, इसलिए हम लोगों ने उसके सामने it is not true that लिख दिया. Then next, Q implies P. Q implies P means what? If P then if Q then P. तो water is warm. तो ये क्या होगा? If water is warm, then he swims. And the last one is Q and negation P. Q क्या है? Water is warm and तो ये and है बीच में. Water is warm and he does not swim. This is how we will write the statements from the symbolic forms. इसके लिए symbolic forms की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रुथ वैल्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग. इम्प्लीकेशन में एक और टेक्निक है जो हम लोगों को सीखनी चाहिए.
Yes, now implication कुछ concept है जो हम लोग सीखेंगे. We know P implies Q. P implies Q का मतलब क्या होता है? If P, then Q. अगर इसमें ही मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो मुझे इसका कॉन्वर्स मिलेगा. कॉन्वर्स इज